Hello everyone, once again welcome back to my channel Research Classes. So in today's video we are going to that why scanner class is used and what is a scanner class. So let me comment this first. So what is scanner class? See, before going to scanner class, let's see that when you create your account in any of the social media platform, for let's take an example for Instagram. So it will ask user to choose their name, to enter their name, to enter their age, to enter their gender. They're not forcefully writing your username or your age that you are 50 years old. No, na. So it is very openly to user that user can choose their name. Oftenly they suggest the name which are not. For example, I chose Mridul. So Mridul is not available at that time. So they will give me some suggestion regarding Mridul. They will give Mridul 002, 005. So like this, they give you suggestion, but they don't force you to use that name only. So this is user based. Yes. So in a program also, it's a good habit to develop a program user friendly. User friendly means which user can enter the values. For example, let's take the example of rectangle, which I have made earlier. If you have not watched that video, please go and watch it. Okay, so here it is. This question 3. So let's full screen this. So yeah, in this is not user defined. So we have assigned 10 to L, 5 to B, and we have put the formula 2 into L plus B. So whenever we need to find the perimeter of different dimensions, for example, one question is of length 10 and B 5, and now my question changes to length 12, B 6. So now again I have to change here. Yes, yes, definitely I will change it here and it will give the correct answer. It will not give the wrong answer. But our approach is wrong because we are not making this user friendly. So for making user friendly, there is a class scanner class which is already there, which is already there. Only we have to import it from the Java libraries. Okay. So where is it? Question 5. Okay. So here also we are going to do the area and perimeter of rectangle, but user defined. Okay. Area and perimeter of rectangle user defined. Scanner of rectangle. So first thing is we are going to import the scanner class. Just remember scanner is in util package. Okay. So for importing the class, we use import keyword. Import java dot util dot c. Right now I am importing util dot scanner. Okay. Class question 5. Sorry, question 5. And now public static void main string args done. So now for user defined, so see for user defined
we have to give some message to user that user can understand what he or she has to do with the program. So first of all, we will give this message output. For example, system.out.println. Here we are going to give them a, sorry, this is not the comma, this is the full stop. So println what? Please enter the length and breadth to find the area and perimeter of rectangle. मैसेज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उससे कोई बात नहीं, बट हाँ ये काम करना चाहिए। तो दिखा देते हैं। सबसे पहले प्रिंट होगा। देखो, जब तुम ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो पहले उसमें लिखा हुआ रहता होगा ना कि क्या करना है। देखो, प्लीज एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी इसमें हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने ऐसे कुछ लगाया नहीं है। अभी हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। इंट l, b, p, a। L is for length, B is for breadth, P is for perimeter, A is for area. Okay. So स्कैनर। नाउ अब एक और बात पे चलते हैं। जैसे स्कैनर है, स्कैनर क्लास है, वो कौन से पैकेज के अंदर है? util पैकेज के अंदर है। तो हमें इसको वहां से इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट कैसे होगा? इंपोर्ट तो हमने कर लिया है, बट यहाँ पे यूज करना है। यूज कैसे होगा? यूज होगा इस तरीके से, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट से हम इसके फंक्शंस को कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हियर स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in. So see, where's my cursor here? See, this is the main line for importing the scanner class or to create the object for the scanner class. And what is the object? Object is the sc. Sc is the name of the object. We can name the object of any kind. I can simply write A or B or C, but for scanner SC, so I have chose SC. When we use scanner class multiple times, then we can use different names for objects. Okay. And this new is a keyword which is used to create an object. An object is SC and बन किसका रहा ऑब्जेक्ट? स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो भी इसी लाइन की तरह बनेंगे, बस यहाँ पे क्लास का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा और ये न्यू का न्यू ऐसे ही रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा। सिस्टम डॉट इन भी ये सब सेम। सिस्टम डॉट इन चेंज होता रहेगा, सिस्टम डॉट इन हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे भी क्लास का नेम आया करेगा अगर वो यूजर डिफाइंड रहती है। ठीक है, तो इतना तो स्कैनर क्लास हमने कर लिया है। फिर इसके बाद हमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? एल में लेना लेंथ। तो यूजर को हम मैसेज डालेंगे, क्या डालेंगे? एंटर दी लेंथ, क्योंकि उसको पता नहीं, उसको हमने यहीं पे बता दिया है इस पूरी स्टेटमेंट की उसको करना क्या क्या है। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पे सिर्फ यही करेंगे। अब यहाँ पे लिया l इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या हमारा sc डॉट। सो यहाँ पे हम लेंगे अब l इक्वल टू sc डॉट। sc डॉट डॉट होता है हमारा ऑपरेटर जो कि हमारे फंक्शन को कॉल करने में हेल्प करेगा। तो l इक्वल टू sc डॉट। l कॉन्स्टेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, कैपिटल I एंड T, और ये होगा हमारा फंक्शन इंटीजर को
इनपुट लेने का। अब इसी तरह b इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी गाइस, ठीक है। अभी पेरीमीटर निकालना है, p इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, एल इंटू बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट, जो कि हमारा प्रिंट करने में हेल्प करेगा। तो प्रिंट क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर आर, ठीक है। तो पहले हमने पेरीमीटर दे दिया, तो पहले पेरीमीटर को प्रिंट कर देंगे, नहीं एरिया दिया तो एरिया को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर कर देंगे हम पेरीमीटर को प्रिंट। देखिए ये ना फॉर्मेट खुद ही करना पड़ता है अपना दिमाग लगा लगा के, ठीक है। ये कोई सिखाता नहीं है कि प्लस फिर स्पेस ये वो ये, तो ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद आ जाएगा आपको भी, ठीक है। कंट्रोल प्लस के से होता है हमारे कंपाइल, कंपाइल करके हम चलते हैं। और अगर आपने मेरी शॉर्टकट कीज वाली वीडियो ना देखी हो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशंस जो होती है, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन, उसको शॉर्टकट कीज से कैसे खोल सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इसी तरह से मैं आगे भी शॉर्टकट कीज के ऊपर और वीडियो बताता रहूँगा। तो अब देखिए ये प्रोग्राम बोल रहा है हमें, प्लीज एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो हम डालते हैं 10, अब डालेंगे हम 5, तो एरिया एंड पेरीमीटर आर 50 हो गया हमारा एरिया, एंड पेरीमीटर हो गया हमारा 5। क्या ये सही है? सही तो नहीं लग रहा है। एल इंटू बी, एरिया 5 मीटर हो गया, और पेरीमीटर, पेरीमीटर गलत आ रहा है हमारा 5। तो पेरीमीटर को जरा देखते हैं, क्यूब क्यूब गलत आ रहा है, फॉर्मूला में मिस्टेक हो गई क्या। 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी 15, 15 टू 30, 30 पी में जाना चाहिए। ओहो, ये ए और बी मैंने दे दिया ना, ए और पी देना है। कंट्रोल प्लस के करेंगे, कंपाइल हो गया। अब देखिए अब आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहले भी आंसर सही आ रहा था, बस वो बी को प्रिंट कर रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी फुल स्क्रीन, 5 हमारा हो गया लेंथ और 2 हो गया हमारी ब्रेथ। तो 5 टू द 10 एरिया हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 टू द 14 हमारा हो गया पेरीमीटर। सो यस गाइस, ये हमारे प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। सो इस प्रोग्राम का, यूजर डिफाइंड प्रोग्राम का यूज क्या होता है, अभी देखो अगर आपको 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करते थे हम 6 क्लास में जब मैथ्स के होते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के, तो हम अगर उसको यहाँ पे लेके बैठेंगे तो हर एक की वैल्यू हर बार चेंज करनी पड़ेगी, तब उसको जाके हमें रन करना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसे जाएंगे, यहाँ पे हम आए, देखो सपोज दूसरा वाला खोल लेता हूँ, क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 3 में यहाँ पे 10 है, तो 10 की वैल्यू हमने हटाई, ऐसे चेंज करा, फिर ब्रेथ हम चेंज करेंगे, तब वो हम दोबारा रन करने जाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा, राइट। बट ये यूजर डिफाइंड का मतलब यही होता है कि यूजर को ऑन द स्पॉट हमें फंक्शंस देखने को मिले। तो जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बस बार बार रन करते रहो, यहाँ पे वैल्यूज डालते रहो, और बस हमारे सिंपल से वो होता रहेगा। चाहे तुम 10 क्वेश्चन एक बार में निकाल लो, चाहे तुम 5 क्वेश्चन एक बार में निकालो, तो टाइम बचा ना। तो ये होता है यूजर डिफाइंड। आई होप सबको ये पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये देखिए ये प्रोग्राम है, अगर किसी भी लाइन में या कुछ कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो जितनी भी हम लेंगे तो उसमें प्री डिफाइंड इनपुट नहीं डालूंगा अब मैं। अब हमने स्कैनर क्लास सीख लिया है, तो स्कैनर क्लास के थ्रू ही अब यूजर इनपुट लूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, सबको आना चाहिए।
तो नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज करा जाता है। तो उसको हम यूजर डिफाइंड तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि हमें ए और बी चाहिए इंटीजर वैल्यू, तो उसको हम यूजर से लेंगे और फिर उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे हम खुद। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।